Hi, good morning everyone. Today we are going to read your chapter 4 Thinker Beliefs and Building Cultural Developments from 6th century BC to 6th century AD. In this chapter we have read about the important topic like stupa architecture and origin of new religious sect during 6th century BC. We have also discussed about that. We are going to read about the cultural history of India, from those time when the Indus Valley civilization has ruled and Vedic culture started, and then after we have come on 6th century BC, half millennium BC. My dear student, as you know that 6th century BC is called the revolution time because during that time there were various changes in the various sphere of human life. That was time of invention, लोहे की खोज, खेती में सरप्लस प्रोडक्शन, नए धार्मिक संप्रदायों का उदय और समाज में रूढ़िवादिता और कर्मकांडता के खिलाफ सोसाइटी का अनसेटिस्फेक्शन, ये सारी चीजें उस समय के परिवर्तन के लिए आधारशिला थी। व्यापार वाणिज्य का भी विकास हो चुका था, मुद्राएं जन प्रचलित हो चुकी थी। Coins also played very important role to develop the economic system during that time. And this is the very important things to understand about the history of 6th century BC to 6th century AD. That was cultural changes. The society gradually changed, बदल रहे थे और नए धार्मिक संप्रदायों के उदय ने विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 64 सेक्ट इंट्रोड्यूस हो चुके थे जिन्होंने वैदिक कर्मकांड और रीति रिवाजों को स्वीकार करने से मना कर दिया। It means they highly oppose the extreme practices of Brahminical practices in the society. They denied all the things which was accepted by the Brahmin priest, like sacrifices, like one system, like extreme practices of the duties, and such type of other. They were all denied by new religious sects. Even new religious sects also denied the existence of God because they felt कि सभी सोशल इविल के पीछे गॉड की सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। यदि भगवान ही नहीं रहेंगे तो ये रिचुअलिटीज अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस तरह की विश्वास के बाद नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। हमने ये भी पढ़ा कि हम इस चैप्टर में 2 धार्मिक संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 धार्मिक संप्रदाय, religious sect, Jainism and Buddhism. We will discuss here. We will focus only 2 sects who don't believe in God. आज भी वो भगवान में विश्वास नहीं करते, and now that time they are in existence. आज वो समाज में अस्तित्व बनाए हुए हैं।
ये अपनी बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। हजारों साल पहले चले ये धर्म, सुधारवादी धर्म, आज भी अपने प्रॉपर फॉर्म में बने हुए, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। हम उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज अगर आप पॉइंट 2.3 देखें तो जहां डिबेट एंड डिस्कशन की बात करता है, वी गेट द ग्लिम्प्स ऑफ द lively discussion and debate from the Buddhist text, which mention as many as 64 steps on the school of thought. Teacher traveled from place to place, trying to convenience one another as well. A lay person about the validity of the philosophy or the way they understood that word. Debate took place in the Kutta Garsala, particular place where they seated and preached the common people, the lay down people. छोटे समाज के लोगों को उपदेश देते थे। ये लोग जगह जगह घूमते थे और अपनी बातों का प्रचार प्रसार करते थे, उन बातों का खंडन करते थे जो समाज में रूढ़िवादिता फैला रही थी। हमने देखा कि टीचर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपनी बातों को, अपने मत को प्रसारित करना, प्रोपोगेशन, मिशनरीज के थ्रू वो अपनी जगह अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे। If a philosopher succeeded in convincing one, his rivals, the followers of the latter also become his disciples. So support for any particular sect could grow and shrink over time. कोई भी एक विचारधारा का व्यक्ति यदि वाद विवाद में अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से हार जाता तो वो उसका फॉलोअर बन जाता था। और ये चीजें संप्रदाय के, पर्टिकुलर संप्रदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म के विकास में इन चीजों का बड़ा महत्व है। इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कशन एंड डिबेट. It was based on the logical and analytical discussion. They discuss about the existence of God, they discuss about the soul, they discuss about that the ritual practices, and they also discuss about that what is world. Many of these teachers, including Mahabir and Buddha, questioned the authority of Vedas. They also emphasized individual agency, suggesting that men and women could strive to attain the liberation form of trials and tribulation of worldly existence. This was in marked contrast to the Brahmanical position, wherein, as we have seen, and the individual's existence was thought to be determined by his or her birth in specific caste or gender. बौद्ध धर्म के लोगों ने उन चीजों को विरोध किया जिसमें जाति, जिसमें जन्म के आधार पर श्रेष्ठता, जिसमें लिंग के आधार पर श्रेष्ठता की बात की गई थी। उन्होंने हर उस चीज को मानने से इनकार कर दिया। वेदों की अपौरुषता को भी उन्होंने अस्वीकार किया। It means, in short, we can say that they were social reformer and they remove all the evils और कुरीतियां जो धर्म में थी, उन्होंने इसको साफ करने का पूरा काम किया एक नए सेक्ट के माध्यम से, ब्रह्म, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म. When we read about the history, when we read about the biography of Mahabir and Buddha, we will see that they belongs to the Brahmanical religion. They were Kshatriya, they were king, they were princess, prince, royal families. They belongs to all things. They belong to the upper class of the society. राजा, रानी, राजमहल, समाज का ऊपरी वर्ग, इन सारी चीजों से संबंधित थे. वो ब्राह्मणिकल रिलीजन्स के ही लोग थे. लेकिन बदलाव हुआ.
हम बात करेंगे आज टीचिंग ऑफ महावीर एंड लाइफ ऑफ महावीर। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर, द मैसेज ऑफ महावीर। यो टॉपिक थर्ड, but before we start topic third, I would like to teach you about the little bit information about Mahavir. Mahavir Swami, Mahavir, that is a very important character in the Indian history. Mahavir Swami belongs to गनाज वैशाली के लिच्छवियों के यहाँ महावीर का जन्म ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय वर्ण में हुआ था। क्षत्रिय थे, ज्ञात्री कुल था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला पाया जाता है। उसकी मां त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक लिच्छवी गणराज्य का हेड था। इनकी माता के अन्य नाम भी मिलते हैं। आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन देयर वेरियस नेम बिकॉज यू बिकम कंफ्यूज। यू हैव टू नो द फर्स्ट नेम। उनकी मां त्रिशला थी। विजय दत्ता भी इनको कहा गया है। अगर रिलेशन देखें तो महावीर का रिलेटिव मगध का सम्राट अजातशत्रु था। अजातशत्रु के स्टेप ब्रदर हल और बेहल चिटक की लड़की से उत्पन्न पुत्र थे। इट मीन्स एक तरह से देखिए तो महावीर अजातशत्रु के मामा हुए। बिकॉज why I want to discuss this issue because I want to inform you that they belong to the upper class of society. They belong to the royal family. But even if they left all the facilities, all the privileges, and they come to join their religious, अपने धर्म को उन्होंने चलाया। वो नीचे आए, उस जगह पे प्रवेश किया जो उनके धर्म को विकास की तरफ जाए, जो समाज का विकास करे। महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी was born in 599 BC in Vaisali. Village name is Kundgram, Kund village. His father name was Siddharth and mother name was Trisala or Vidyadatta, and his name was Vardhaman. The actual name of Mahavir, that was Vardhaman. His elder brother name was Nandivardhan. Their life as a prince बड़े ही शान शौकत के साथ गुजरा, सुख सुविधाओं से भरपूर। इनकी शादी कर दी गई विष्णु कुंडिन वंशी कन्या से। इनकी शादी कर दी गई एंड इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से एक पुत्री उत्पन्न हुई, अड़ोज्जा या प्रियदर्शना। इसकी शादी बाद में जमाली से कर दी गई। महावीर स्वामी 30 साल तक अपनी गृहस्थ जीवन में रहे, शादी, बच्चों, परिवार के साथ रहे। बट आफ्टर 30 years ही डिसाइडेड कि समय आ गया है अब परिवार घर छोड़ने का, संन्यास लेने का। और 30 साल बाद उन्होंने, पिता की मृत्यु हो चुकी थी, बड़े भाई से आज्ञा लेके उन्होंने संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद
42 ईयर्स की एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। द ज्ञान इंटेलेक्चुअल he became, he called निगंठनाथ पुत्र, he called महावीर, he called जिन, he called अरहत, बहुत सारे नाम इनके मिले। कैवल्य की प्राप्ति के बाद 42 ईयर्स की एज में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य ही संपूर्ण ज्ञान था, कैवल्य ही जैनिज्म फिलॉसफी का मेन मोटो था। कैवल्य की प्राप्ति के लिए कठोर साधना, एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, और वी कैन से वर्ड वी कैन यूज एसेक्टिज्म की बात करते हैं। कठोर तप, कठोर व्रत के पालन की बात महावीर स्वामी करते हैं। महावीर स्वामी वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, 24वें तीर्थंकर थे। इनके पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए, उसके पालन के लिए सबको, सारे जैनियों को कहा। ये 5 उपदेश थे: ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, ट्रूथनेस, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इट मीन्स कि ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं, ज्यादा अकाउंट नहीं करना, उतना ही रखना जितना यूजफुल हो। लेकिन महावीर ने इसमें एक और व्रत जोड़ा। देयर वर 5 vows given by Mahavir. Previously, we have seen in Jainism there were 4 vows given by 23rd Tirthankar, 23rd teacher of Jainism, Parshvanath. But when Mahavir came, he connected one other vows, Brahmacharya. सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए और इसमें एक व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ दिया। अब व्रतों की संख्या 5 हो गई। सभी के लिए इनका पालन करना अनिवार्य था, क्योंकि महावीर ने 13 महीनों तक कपड़े चेंज नहीं किए और फिर उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, नंगे रहते थे। इसलिए उन्होंने जैन मॉन्क्स के लिए दिगंबर रहने की बात कही। जैन धर्म की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण था अनेकांतवाद या स्यादवाद। अनेकांतवाद या स्यादवाद, इट इज लाइक ए जैनिज्म फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू दैट, इन द वर्ल्ड देयर इज नो ट्रांजिट, कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, सब कुछ संदेह पर। स्यादवाद की संख्या 7 है, देयर आर 7। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अस्ति च व्यक्तम, स्यात् नास्ति च व्यक्तम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम। दीज आर 7। उन्होंने इसी के आधार पे जैन धर्म की व्याख्या की। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात कही गई। उनके उपदेशों में त्रिरत्न का महत्वपूर्ण योगदान: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों के द्वारा दी गई शिक्षाएं को एज इट इज स्वीकार कर लेना, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में महावीर ने कहा कि आप जैन धर्म के अकॉर्डिंग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में जैन धर्म में उसके सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए थे: मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय। उसमें से महत्वपूर्ण थे मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय और कैवल्य। इन 5 प्रकारों में
कैवल्य का सबसे महत्वपूर्ण और सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है, सही माना जा चुका है, उसे कार्य रूप में परिणत कर देना ही सम्यक चरित्र कहा गया। जैन दर्शन में इन त्रिरत्नों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की उपदेशों की, शिक्षाओं की। महावीर स्वामी के बारे में उन चीजों को भी देखते हैं, उनकी फिलॉसफी के बारे में देखते हैं, वो क्या कहते हैं। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavir. In the 6th century BC, according to Jain tradition, Mahavir was preceded by 23 other teachers or Tirthankars, literally those who guide men and women across the river of existence. Tirthankar, what is the meaning of Tirthankar? Meaning of Tirthankar is those who guide men and women across the river of existence. He called Tirthankar, 24 Tirthankar. The most important idea in Jainism is that entire world is animated. The whole world is animated. Even stone, rocks, and water have life. Non-injury to life, non-injury to living being, especially to humans, animals, plants, and insects, is central to Jainism within very important way. And they also central to Jainism philosophy. In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. According to Jain teachers and teachings, the cycle of birth and rebirth is saved through karma, asceticism, and the penance are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is necessary condition of salvation. Jain monk and nun took 5 vows to abstain from killing, ahimsa, stealing and laying, चोरी न करना, to observe celibacy, ब्रह्मचर्य का पालन करना, and to abstain from possessing property, धन इकट्ठा न करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 प्रॉपर्टी को उन्होंने बताया. That is the 5 vows given by महावीर. महावीर ने क्लियर कहा कि संसार में सभी चीज, सभी वस्तुएं, जीव अजीव, सब में जान है, सभी अलाइव है. उन्होंने कहा कि जिनमें चैतन्य है, आत्मा का प्रधान गुण चैतन्य है. उन्होंने कहा कि जिसमें चैतन्य की मात्रा जितनी ज्यादा है, वो व्यक्ति जीवित दिखाई देता है, लिविंग थिंग्स के रूप में दिखता है, चलता है. जिसमें चेतना कम है, वो अजीव के रूप में दिखता है. उन्होंने अजीव के रूप में उन चीजों को रखा जिन्हें हम सामान्य रूप से निर्जीव मानते हैं. पत्थर, लकड़ी, मेज. अकॉर्डिंग टू महावीर, एवरीथिंग इज अलाइव, सब में जान है. कर्म का प्रवाह सबकी तरफ है. कर्म को उन्होंने प्रधान रूप से देखा, लेकिन ये कर्म ब्राह्मणिकल कर्म से अलग था. उन्होंने कहा
कि जीव की तरफ जब कर्म का प्रवाह होता है, द फ्लो ऑफ कर्म टूवर्ड्स जीव, दैट इज कॉल्ड आश्रव। जब व्यक्ति त्रिरत्नों का पालन करता है, त्रिरत्नों के पालन के बाद उसके तरफ जीवों का प्रवाह रुक जाता है, कर्म का प्रवाह जीव की तरफ रुक जाता है, और फिर कर्म का जीवों की तरफ प्रवाह का रुकना संवरा कहलाती है। और संवरा की स्थिति के बाद यदि व्यक्ति प्रॉपर एक्सट्रीम अस्केटिज्म को फॉलो कर रहा है, कठोर व्रत का पालन कर रहा है, जैन धर्म के सिद्धांतों को ऑनेस्टली प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर कर्म जीव के अंदर से समाप्त होने शुरू हो जाएंगे और फिर वो पुद्गल प्योर मैटर के रूप में चेंज हो जाएगा, उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये तीसरी अवस्था निर्जरा की अवस्था है, और निर्जरा के बाद व्यक्ति कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। महावीर स्वामी रीबर्थ एंड सोल में बिलीव करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा, बुद्ध की जगह महावीर आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते हैं, लेकिन बुद्ध सिर्फ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। यहां पे महावीर की बात कर रही है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द महावीर। यहां पे महावीर आत्मा में विश्वास और पुनर्जन्म में विश्वास दोनों करते हैं। अब इनके धर्म के विस्तार की बात करते हैं। We have to discuss about that, the point, the spread of Jainism. Gradually, Jainism spread to many parts of India, like the Buddhist. Jain scholar produced a wealth of literature in a variety of languages: Prakrit, Sanskrit, Tamil, Telugu. For centuries, manuscript of these texts were carefully preserved and libraries attached to temple. Some of the earlier and earliest stone sculpture associated with the religious tradition were produced by devotees of the Jain Tirthankars and have been recovered from several sites throughout the subcontinent. जैन धर्म की कहानियां, जैन धर्म के विचार, जैन धर्म के उपदेश को जैन धर्म की किताबों में, लिटरेचर में प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके मंदिरों से अटैच लाइब्रेरी में रख दिया गया। जैन मॉन्क्स दूर दूर तक इन चित्रों का प्रसार करते थे। मिशनरीज के थ्रू काफी लंबे क्षेत्र में जाते थे। हमने बात किया कि ये लोग दूर दराज के क्षेत्रों पे अपने मत को प्रचार करने के लिए जाते थे। महावीर स्वामी के धर्म का प्रसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, श्रीलंका तक के क्षेत्रों में, तमिलनाडु तक के क्षेत्रों में जैन धर्म के प्रचार की पूरी श्रृंखला में दिखाई देती है। We have seen a chain, long chain, from north to south and east to west, whole India. जैन धर्म ने अपने सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित किया और सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के साथ साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ के महावीर ने 5 वोज दिए। जैन धर्म की शिक्षाओं में उन्होंने कहा कि 5 व्रतों के पालन करने के बाद त्रिरत्नों का पालन सबको करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और फिर सम्यक त्रिरत्नों के बाद व्यक्ति को अनेकांतवाद या स्यादवाद के आधार पे कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए, कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और ये वास्तविक ज्ञान उसे कैवल्य की तरफ ले जाएगा, जीव पे कर्मों का प्रवाह रोक देगा और जीव का विकास प्रॉपरली हो जाएगा। इस तरीके से जैन धर्म ने अपने सिद्धांतों की पूरी व्याख्या की। हम अगर टीचिंग को एक बार फिर आपके सामने करते हैं, आपको यही याद करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बार बार आपके एग्जाम में यही पूछता है कि व्हाट इज द
टीचिंग ऑफ महावीर और जैनिज्म फिलॉसफी। आपको लिखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट entire world is animated. Even stone, rock, and water have life. Non-injury to living beings, especially to humans, animal, plant, and insects, is central to Jainism philosophy. In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian taking as a whole. According to Jain teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma, asceticism, and the pinnacle of the required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world, therefore, monastic existence of the necessary condition of salvation. Jain monk and nun took 5 vows to abstain from killing, stealing, and laying, to observe celibacy, and to abstain from the possessing property. यहाँ पे संलेखना की बात भी जैन धर्म में की गई है। संलेखना का अर्थ होता है भूख से प्राण की त्याग करना, अपने अंत समय में कोई भी चीज ग्रहण न करना और भूख से शरीर का त्याग करके कैवल्य की प्राप्ति कर लेना। जैन धर्म की टीचिंग में हमने जैन धर्म के बारे में आज विस्तार से बातें की। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके नेक्स्ट धर्म बौद्ध धर्म की। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।